Hello students, welcome to the channel Maths Time. In previous lecture we have discussed about the introduction of complex number. Now in this video we are going to discuss about algebra of complex numbers. Please like the video, subscribe the channel and please share your views in the comment box. Okay. So now in earlier video we have discussed about addition, subtraction, multiplication, division of two complex numbers. Now we are going to see the powers of I, right? Higher powers of I. Now we know that the value of I is equals to what? Root of -1. If we square both sides, we get the value of I square, that is equals to -1. Then how to find value of I cube? I cube is equals to, it can be split as I square into I. So I square is -1 and -1 into I is equals to what? Minus I. Similarly, I power 4 can be split as I square into I square, right? So -1 into -1, that is equals to what? +1. So these were the powers of I. Now these are the basic powers of I is equals to root of -1. We don't write the value generally. Then that is I square value is -1. I cube is equals to -I and I power 4 is equals to +1. These four values you have to by heart, right? And by using these four values we are going to simplify the higher powers of I. Now next, general powers of I. So see, now next I power 5, I power 7, I power 8, I power 6 and so on. This higher powers of I we are going to split by using I power 4. Why? Because I power 4 is equals to what? 1. And so for simplifying the powers, multiplication by 1 will be easy. So see, I power 5 can be written as I power 4 into 1 I. So we get I, right? I power 6 can be written as I power 4 into I square. So I power 4 is equals to 1 and I square value is -1. So we get the value as -1. Similarly, I power 7 and I power 8 we have split, right? So basically we have used the value of I power 4 is equals to 1 for splitting the higher powers of I. See, I की values क्या रहेगी? I, -1, -I and 1, right? These four values go on repeating. इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमको मिलने वाली नहीं है, ठीक है? So these four values only we are going to get and it goes on repeating. So how we are going to simplify higher powers? जैसे कि 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में है पावर, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सपोज दिस इज I पावर 23. तो I पावर 23 हम क्या यूज़ कर रहे हैं? I पावर 4, राइट? 4 जो फोर्थ पावर है I का, जिसकी वैल्यू है 1, वो हम यूज़ करने वाले हैं हायर पावर्स ऑफ I फाइंड आउट करने के लिए. सो वी डिवाइड हियर बाय 4, ठीक है? हर एक जो भी हायर पावर रहेगा I का, उसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे. दिस इज़ द जनरल प्रोसीजर. सो 4 क्या आएगा? 4 5 ज़ा 20 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 3, राइट? सो हम 23 को कैसे लिख सकते हैं? हाउ वी कैन राइट 23? 4 इंटू 5 प्लस 3 बराबर 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 5 प्लस 3. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर वाला रूल यूज़ किया है हमने. सो 4 इंटू 5 प्लस 3 के फॉर्म में हमने लिखा है उसको. सो यही चीज़ हम I के पावर में लिखी है हमने. 23 को हमने कैसे लिखा है? 4 इंटू 5 प्लस 3. सो अभी हमने क्या किया? ये 4 इंटू 5 अलग स्प्लिट किया I का, और I टू द पावर 3 एक मल्टीप्लीकेशन में लिखा है बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, राइट? सो 4 इंटू 5 को कैसे लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 5 इंटू I क्यूब. सो I टू द पावर 4 की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 1. सो 1 टू द पावर 5 हो गया, और I क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास है -I. सो 1 इंटू -I इज इक्वल्स टू वॉट? -I. सो अल्टीमेटली हमको I टू द पावर 23 की का आंसर क्या मिला है? -I.
ठीक है, तो ये सब हमने कैसे फाइंड आउट किया है, बाय डिवाइडिंग द वैल्यू बाय 4, और फिर उसको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है। और रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1, 2, 3 या 0, इन चारों में से ही एक आएगा। ठीक है, सो अगर 1 रिमाइंडर आया तो उसका आंसर आएगा आई, 2 रिमाइंडर आएगा तो उसका आंसर आएगा आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1, 3 रिमाइंडर आया तो फिर उसका आंसर आएगा आई क्यूब की जो वैल्यू है -i, और 4 रिमाइंडर आया, सॉरी 4 तो आता नहीं है, सो 0 रिमाइंडर आया तो फिर उसका आंसर आएगा, अगर वो 4 का कंप्लीट डिविजिबल रहता है 4 से तो उसका आंसर आता है आपका 1। ओके, so in this way we will simplify the higher powers of I. Now we will move on to the first exercise of complex numbers. In for science students it is lesson 1 of part 2, and for commerce students it is lesson 3 of part 2, right? So first question क्या है, write the conjugates of the following complex numbers. ठीक है, कॉन्जुगेट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट मतलब क्या करते हैं हम, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट 1+ है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट? सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, और कॉन्जुगेट को हम किससे डिनोट करेंगे, z से, राइट? सो देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 3+i, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे +i, और i की +i को अगर माइनस किया तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा उसका 3 - i। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3 - i, तो 3 - i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, राइट 3+i। हमने क्या किया है, i की साइन चेंज कर दी, यहाँ पे i माइनस था तो उसको क्या कर दिया हमने +i कर दिया। फिर नेक्स्ट है आपका -√5, ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी i दिख नहीं रहा है, लेकिन वी नो दैट √1 इज़ व्हाट i, तो फिर -√5 को हम क्या लिख सकते हैं, -√5i, वाई बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ √1 इज़ i। ठीक है, तो अभी आया आपका -√5i, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका +√5i। ओके, हमने क्या किया है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसकी हमने क्या कर दी, साइन चेंज। तो बाकी के आप सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट। अभी हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + bi, where a and b belongs to real number. You have to state the values of a and b. You have to state the values of a and b. देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमने देखा है अलजेब्रा, प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हमको यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है, और उसको आपको लेके आना है a + bi के फॉर्म में, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 1 + 2i एंड इंटू -2 + i, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 ब्रैकेट्स आर देयर इन मल्टीप्लीकेशन, so just you have to open the brackets or you have to multiply these 2 complex numbers. हमने देखा है कि how we multiply, we just open the brackets to multiply 2 complex numbers. देखो 1 + 2i है, -2 + i है, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 1 × -2 इज़ -2, फिर 1 × i इज़ i, then +2i × -2 इज़ -4i, then +2i into +i इज़ +2i², राइट? सो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहली स्टेप है कि ओपन द ब्रैकेट्स। सेकेंड स्टेप क्या है, i² की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे 2i² है तो यहाँ पे जो i² है उसकी वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, -1। वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ i² एज -1, देन वी विल मल्टीप्लाई इट -2, फिर यहाँ पे i -4i को हमने सिंप्लीफाई किया -3i, एंड फिर -1 × 2 जो है वो क्या आ जाएगा आपका -2, राइट?
फिर रियल रियल से ऐड कर देना है और इमेजनरी इमेजनरी से, सो -2 हो जाएगा आपका -4 एंड -3i विल बी एज इट इज़। सो ये आ गया आपका आंसर a+ib के फॉर्म में या a+bi के फॉर्म में। तो आंसर क्या है आपका -4 -3i, आंसर इज -4 -3i। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू लिखेंगे -4 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3 बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस। a की जगह पे है -4 और b के जगह पे क्या है -3। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। देखो फर्स्ट सम किस पे था, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और एक सम हम देखेंगे सेम सब क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, i इंटू 4 + 3i अपॉन 1 - i, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। देखो प्रोसीड करने से पहले आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, राइट, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है फिर डिवीजन आता है। सो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई इट। देखो न्यूमरेटर में क्या है, i इंटू 4 + 3i। सो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई इट विथ i एंड देन जो भी आपका सिंप्लीफाई करके आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 1 - i से, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सो 4i + 3i² आएगा। देन जहाँ पे भी i² आता है आप क्या करते हो, i² की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हो -1। सो आपका आया है 4i - 3, डिनोमिनेटर आपका रहेगा 1 - i, राइट। ये तो अभी न्यूमरेटर आपने सिंप्लीफाई किया है। नाउ अगेन दिख ही रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन डिवीजन, सो वी विल अप्लाई द डिवीजन मेथड टू सॉल्व दिस फर्दर। तो डिवीजन कैसे करते हैं हम, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। यस, क्या करेंगे हम डिवीजन के लिए, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है 1 - i और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 + i। तो हम क्या करेंगे 1 + i से डिवाइड करेंगे और 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है डिवीजन में, वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो 4i - 3 को हमने 1 + i से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में 1 - i इंटू 1 + i हो गया। तो जैसे न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन किया तो हमको मिल जाएगा 4i + 4i² -3 - 3i, और डिनोमिनेटर के ब्रैकेट ओपन किए, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b, a - b, सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला। तो आ जाएगा आपके पास a² - b², राइट। सो 1 - i²। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि जो भी i² की वैल्यू है दैट उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है -1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। फिर हमको मिला i -4 -3 और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 1 + 1। तो फिर न्यूमरेटर में हमने रियल रियल को ऐड किया और इमेजनरी को पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया था। तो हमारे पास आ जाएगा i - 7/2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल सेपरेट द डिनोमिनेटर i/2 -7/2। सो हमने थोड़ा सा इसको लिख दिया -7/2 + i/2। सो अभी ये आ गया आपका a + bi के फॉर्म में -7/2 + i/2। Now if you compare then you get the value of a as -7/2 and the value of b as 1/2. Okay, so in this way we have solved this example, right। इसके बाकी के सारे सब क्वेश्चन भी सिमिलर है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बाकी के भी सम्स देख सकते हो। इन द सिमिलर वे वी हैव सॉल्व्ड ऑल द सम्स इन दिस सब क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमको प्रूव करना है, शो दैट -1 + √3i होल क्यूब इज़ अ रियल नंबर, राइट। वी हैव टू प्रूव दैट -1 + √3i³ इज़ अ रियल नंबर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है -1 + √3i³ को बाय यूजिंग द फॉर्मूला a + b होल क्यूब। और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको देखना है कि वहाँ का उधर इमेजिनरी पार्ट आता है क्या। अगर इमेजिनरी पार्ट है तो देन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ इमेजिनरी पार्ट इज़ 0 देन इट इज़ अ रियल नंबर। सो लेट्स प्रोसीड। देखो -1 + √3i³, तो फिर उसको a³ +
बी ए प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² प्लस बी क्यूब, यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 प्लस √3i² प्लस 3 इंटू -1 प्लस √3i एंड प्लस √3i क्यूब। फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया, -1 का क्यूब आता है -1 और फिर इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, √3 का स्क्वायर आएगा 3, फिर 3 इंटू 3 आएगा 9 और फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 एंड i² की वैल्यू आती है -1, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए आ जाएगा वो +9। सिमिलरली बाकी की भी दो वैल्यूज़ आ गई। फिर ये +3√3 आया एंड -3√3 गेट्स कैंसल्ड एंड -1 + 9 कम्स आउट टू बी 8। तो फिर जो भी यहाँ पे आंसर आया है वहाँ पे सिर्फ 8 आया है, इमेजिनरी पार्ट आई वाला टर्म कोई आया ही नहीं है। सो वी कैन से दैट एज 8 इज़ अ रियल नंबर, -1 + √3i³ इज़ अ रियल नंबर। ओके, 7 सम भी आपको आई के हायर पावर सिंप्लीफाई करने हैं और फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 8 वी विल सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, LHS भी है और RHS भी है और हमको उसको सॉल्व करना है जिसमें दो वेरिएबल्स है x एंड y एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल्स x एंड y। सो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 2y + 2x - 3yi + 4i = 5। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी हमको ये सॉल्व करना है। हाउ यू विल सॉल्व, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो LHS है उसको हम a + bi के फॉर्म में लाएंगे, RHS है उसको भी हम a + bi के फॉर्म में लाएंगे और फिर वी विल कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। से देखो LHS में जो भी रियल है वो एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो भी इमेजिनरी है मतलब आई वाली टर्म हमने कॉमन निकाली, तो फिर बच जाएगा हमारे पास 2x - 3y + 4। और RHS में क्या किया है हमने, सिर्फ कांस्टेंट है 5, सो 5 + 0i ऐसे लिख लिया, मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, सो वी कैन राइट इट एज 0i। सो we have written LHS in the form of a + bi and we have written RHS also in the form of a + bi. Now we will what we will do, we will compare real and imaginary parts. Real मतलब जिसमें I नहीं है और imaginary मतलब जिसके साथ I है। तो रियल मतलब LHS का रियल क्या हो गया x + 2y और RHS का रियल क्या हो गया 5, सो x + 2y = 5 एंड देन LHS का इमेजिनरी क्या हो गया 2x - 3y + 4 और RHS का इमेजिनरी क्या हो गया 0, राइट। सो x + 2y = 5 को हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया और जो सेकंड इक्वेशन आया है हमारा, तो 4 को हम RHS में लेके गए तो फिर वो हो जाएगा 2x - 3y = -4। See, now we are getting two equations, two simultaneous equations, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। देखो हमारे पास जितने इक्वेशंस रहते हैं अगर उतने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, देन डेफिनेटली वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स। नाउ वी हैव हियर टू वेरिएबल्स and two equation, x + 2y = 5 and 2x - 3y = -4। यहाँ पे प्रोसीजर दिख ही रही है कैसे किया है, वी हैव यूज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड वी हैव सॉल्व द इक्वेशन। तो हमको y की वैल्यू मिल गई = 2 एंड x की वैल्यू मिल गई हमको 1। सो दैट ओनली वी हैव टू फाइंड आउट। हमको क्या करना था, x एंड y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, राइट। सो सिमिलरली बाकी के क्वेश्चंस भी हमको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। कहाँ कोई क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ क्वेश्चन में डिवीजन करना है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हर पार्ट में रहता ही है। बेसिकली हमको क्या करना है कि LHS a + bi के फॉर्म में लाना है, RHS a + bi के फॉर्म में लाना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर रियल इक्वेट करना है और इमेजिनरी इक्वेट करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैंने धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉल किया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो सॉल्यूशन इसका।
देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i. मतलब देखो अभी यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है और एक एक्स की वैल्यू दी है और आपको क्या करना है कि वो एक्स की वैल्यू से वो पूरे इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, राइट. तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और 46, और एक्स क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का वो स्क्वायर करने जाओगे, क्यूब करने जाओगे, देन इट विल बी अ लेंदी प्रोसीजर फॉर यू. तो वैसे भी कर सकते हो, आप एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, एक्स क्यूब निकाल सकते हो, देन यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन. और एल्स व्हाट यू कैन डू, देयर इज एन ईजी मेथड ऑल्सो. तो देखो क्या कर सकते हैं हम, x की वैल्यू हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. तो देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3i. x क्या है 2 प्लस 3i. तो हम क्या करेंगे, अभी सारा रियल LHS में लेके आएंगे और इमेजिनरी को RHS में रहने देंगे. तो रियल क्या है 2, तो 2 को हम LHS में लेके आए, सो इट विल बिकम x माइनस 2 एंड लेट द 3i बी ऑन RHS ओनली. Now what we will do, we will square both sides. क्या करेंगे हम, squaring both sides. So x minus 2 square is equals to 3i square. So x minus 2 का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और 3i का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड i स्क्वायर इज माइनस 1. सो 3 इंटू माइनस 1 विल बिकम माइनस 9, राइट. अभी ये माइनस 9 को हम LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस 9. सो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अभी हमको ये इक्वेशन मिल गया. कैसे मिला, हमने x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i को सिंप्लीफाई किया. नाउ हम क्या करेंगे, अभी ये जो है हमारा क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो देखो हमने कैसे डिवाइड किया, ये तो डिवीजन हमको पता है 2 इक्वेशंस का कैसे करते हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसकी हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब. तो दिस इज़ द क्वेश्चन हियर, राइट. वो यहाँ पे चला गया है लेफ्ट साइड में. सो देखो पहले हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, तो फिर क्या आ जाएगा पूरा डिविजर आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13x. फिर हमने साइन चेंज की, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर. फिर ये आ जाएगा आपका माइनस 12x प्लस 46, राइट. एक सेकेंड. तो फिर अभी हम क्या करेंगे, ये आ गया आपका. फिर हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13. फिर अगेन इसको सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा वो अलाइनमेंट उधर हो गई, तो फिर आ जाएगा आपका माइनस 10x प्लस 33. सो योर रिमाइंडर इज व्हाट, माइनस 10x प्लस 33. सो ये आप इसको इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हमने लिखा है. बट ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 की वैल्यू क्या आई है, 0. हमने ऊपर ही सिंप्लीफाई किया था, तो फिर उसकी वैल्यू क्या आई, 0. सो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ 0. तो फिर बचा क्या, रिमाइंडर क्या है हमारा, माइनस 10x प्लस 33. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस 10x प्लस 33. ओके. सिमिलरली हम बाकी के सम्स भी इसी तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के. सेम इन द सेम वे you have to divide. So
यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की ख़त्म होती है. इन दिस वे यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द सम्स ऑल्सो. ओके, आई होप ये आप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो as much as possible so that other students can also benefit out of this. Thank you. Bye bye, and we'll see you in the next video, next exercise of the complex number. Okay, bye bye.